Hello everyone. In today's class, we are going to start with Data Science Practical 2. The Data Science Practical 2, we have to perform data frames and basic data pre-processing operations. Here we have 4 major sub-questions. पहला जो सब क्वेश्चन है उसमें हमको CSV एंड JSON फाइल को रीड करके we have to perform different data frame operations. Then second, we have to work on missing value. Okay, how you will identify, how we are going to tackle it. Okay, then outline is identifying it and then removing it, and then lastly manipulating using filter and sorting and grouping operations. Let's start one by one. तो सबसे पहले हमको CSV एंड JSON फाइल चाहिए. तो इसमें मैंने सिंपल हमारा टर्म 1 के डेटा सेट लिए हुए हैं. So we have to launch Anaconda in that Jupyter. Okay, I have launched already because it is very time taking. And then we have to upload our JSON file as well as the CSV data set. Okay, click on upload and select your file wherever you have saved and simply you have to upload it. Okay, मैंने यहाँ पे हमारा जो data set है that is play tennis. Okay, I have done a little bit of modification. I was willing to have a number column, so I have added number of people in it. Okay, and कुछ values को null कर दिया है. Okay, हमको empty चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 12th is not written serial number. Then यहाँ पर outlook is missing, 7 के बाद comma दिया हुआ है. Likewise कुछ values मैंने यहाँ से बीच में हटा दिया है. ओके, हमको वहाँ पर empty values भी दिखानी थी, that's why. और हमारा जो दूसरा डेटा सेट है that is JSON file, that is JavaScript object notation. You can see this is simple array. This is our element 1. JSON फाइल बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल होती है जहाँ पर की एंड वैल्यू पेयर में वैल्यू स्टोर होती है. जैसे आईडी इज अ की एंड वैल्यू इज 1, नेम इज एलिस, एज इज 25. लाइकवाइज दिस इज अवर 1 ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट. ये एरे पैटर्न में वैल्यू स्टोर करता है. ओके, एंड इस फाइल के नाम है sample data.json. Okay, so let's start with the first one, that is reading both the files and performing data frame basic operation. So new पे click करके Python we have to open it. Now the first practical we are going to do here is performing the data frames. Okay, this is a command which I've added. Then we have to write import pandas as pd. Then we have to use CSV file. So I'll write CSV file equal to, और यहाँ पर आप अपने फाइल का नाम देंगे, we'll add it later. Then we have to create data frame object. So df underscore, I'm writing variable name. Okay, and then we have to perform a read CSV ऑपरेशन. ओके, ये मेथड है जो कि CSV फाइल को रीड करेगा जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है CSV. ओके, देन likewise we have to write for JSON also, JSON file. Then we have to write df JSON equal to pd dot, that is pandas object, read JSON underscore file. ओके, अब यहाँ पर हमको हमारा जो फाइल नेम है वो हमको वैसे का वैसे कॉपी करना है. सो हियर वी हैव ऑलरेडी प्ले टेनिस, सो आई विल कॉपी फ्रॉम हियर ओनली. कॉपी करेंगे, देन वापस हमारी जो फाइल है वहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे. ओके, लाइकवाइज जेसन का भी नाम हम कॉपी करेंगे. एंड उसको भी पेस्ट कर देंगे. ओके,
सो अभी दोनों फाइल हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है. नाउ नेक्स्ट इज सपोज वी वांट टू प्रिंट इट. तो यहाँ पे पहले हम विल राइट प्रिंट CSV data comma df CSV dot tail. Okay, tail method will print the bottom files, bottom data. Okay, so it is started from the bottom. All right. Likewise we can do for the JSON also. We'll write print JSON data comma we have data frame df JSON. Correct. So we have to write that dot. Suppose in this case I am printing the head. Okay, head means beginning का वो print करने वाला है. तो ये हमारा टेल वाला था. CSV से एंड JSON से हमने ऊपर के टॉप 5 डेटा प्रिंट किया. Okay, suppose we have to perform more data frame operations, so we can write df underscore CSV dot shape. Now this method is going to tell us about the shape, which is 14 rows 7 columns. Okay, इसको हम कमेंट कर देते हैं so that values will be more clear. Okay, now you can see 14 rows and 7 columns are there. Then we can write print df underscore CSV dot columns. Now this will print the columns. Okay, so we have here these many columns. Then we can write df underscore CSV dot d types. Now this will tell you the types of the columns. Okay, object है, integer है और float है, whatever the column we have created. Okay, जो भी आपका attribute है. Then for the JSON also we can write here. Same operation we can perform on both the types of data set. Okay, JSON पे भी आप लिख सकते हैं df underscore JSON dot say head 2. So it will print you the first 2 records. You can see here 0 1. Okay, I'll make it comment this one. All right, then after that we can write df underscore JSON dot tail to print the bottom 2. Okay, this is how this works. All right, so this was the first one, that is performing the data frame basic operations on both the files, type of files, that is CSV and JSON. We can try all such methods in both the data sets. All right, let's move forward. The next question was to perform the basic data pre-processing tasks such as missing value. Now missing values के लिए now we'll work on CSV only. Okay, we'll print the CSV. Now you can see this is our full data set. Now it has many of the null values और outliners, जैसे कि अभी यहाँ पे number of people सब हमारे 1 to 4 के बीच में लाया, बट ये एक वैल्यू है जो 100 है, मीन्स ये एक आउटलाइनर है. यस, जो कि हमारे डेटा सेट का पार्ट नहीं है. ओके, सो ये एक आउटलाइनर हमने अभी आइडेंटिफाई किया. मिसिंग वैल्यू सच एज ये NaN लिखा हुआ है, दिस इज मिसिंग. यस, और भी ऐसे वैल्यूज होंगे जो हियर ऑल्सो NaN मीन्स दिस इज नल. ओके, ऐसे वैल्यूज को आप मिसिंग वैल्यू कहते हैं जो कि नहीं गिवन होती है. नाउ सी हाउ वी कैन
how we can work with missing values. We'll write df cleaned df underscore csv dot drop na. Now na method will simply drop the na लिखा हुआ, that is empty जो होगा वो उसको delete कर देगा. ओके, print and that is using row wise. हम रो वाइज भी डिलीट कर सकते हैं प्लस कॉलम वाइज भी डिलीट कर सकते हैं. na data frames after, let's put the message rows with missing values. Okay, then we'll print df underscore cleaned. Okay, let's run this. Okay, now you can see it has deleted. वो डायरेक्ट उसने डिलीट कर दिया है वो सारे रोज जहां पर नल वैल्यूज थी. अभी यहाँ पर कोई भी कॉलम कोई भी रो नहीं है जहां पर नल वैल्यू है. जैसे कि यहाँ पे 12 पे नल था बट यू कैन सी यहाँ पे 12 ही डिलीट हो गया है. 13 में भी na था तो मीन्स वो उसने डायरेक्टली वो पर्टिकुलर रो को वो डिलीट कर देगा. ओके, ये एक तरीका है जिससे कि आप मिसिंग वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं. नाउ देयर इज अनदर मेथड. दिस वाज यूजिंग रोज. ओके, आई हैव रिटन हियर इन द प्रिंट स्टेटमेंट. Then there is other way. Let's see that also. Cleaned equal to df underscore csv dot drop na. सेम मेथड है, जस्ट आपको यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 1 लिखना है. ये क्या करेगा, ये पूरा कॉलम वाइज डिलीट करने वाला है. Now you can see it has deleted directly the columns. तो यहाँ पे आपका डेटा लॉस भी होता है बिकॉज ऑब्वियसली जिस कॉलम में भी एम्प्टी होगा वो उसको तुरंत वो कॉलम को ही डिलीट कर दे रहा है. ओके, नाउ सपोज वी वांट टू, obviously that is not a good method to deal with missing values. Suppose we want to count the number of missing columns or missing datas. So for counting we can write here print df underscore csv dot is null dot sum. ओके, सो अब ये पूरा सम प्रिंट करने वाला है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट जो है वो मिसिंग है. जैसे कि एसएनओ में एक वैल्यू मिसिंग है, आउटलुक में 2 वैल्यू मिसिंग है, टेम्परेचर में 1 वैल्यू, ह्यूमिडिटी में 1, विंडी में 1, लाइकवाइज. ओके, जहाँ पे मिसिंग नहीं वहां पे वो 0 दे देगा. ना अभी तक हमने देखा रो वाइज कैसे डिलीट कर सकते हैं, कॉलम वाइज कैसे डिलीट कर सकते हैं और काउंट कैसे कर सकते हैं. यस, नाउ क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आएगा कि आप हैंडल कैसे करोगे मिसिंग वैल्यू से. अगर आपने रो से डिलीट किया, कॉलम से डिलीट किया तो मीन्स आपका डेटा सेट तो रिड्यूस हो गया. करेक्ट, दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शंस. तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं. सबसे इजी मेथड मीन मेथड एंड मोड मेथड से होता है. लेट्स सी इट. ओके, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज. सो विल राइट df, हमारा जो डेटा फ्रेम है मैंने एक यहाँ पे वैल्यू ली हुई है दैट इज टेम्परेचर फील्ड. टेम्परेचर में हमने देखा है कि एक मिसिंग वैल्यू है. ओके, सो विल राइट टेम्प डॉट फिल na. अब ये हम फिलिंग करने वाले हैं बेसिकली बट यूजिंग सर्टन पैरामीटर्स. ओके,
मोड मेथड है जो कि टेम्परेचर को फिल नहीं करेगा, टेम्परेचर के ही बाकी सारे वैल्यूज के थ्रू मोड मेथड से। मींस इसमें क्या होने वाला है, जिस भी वैल्यूज का काउंट सबसे ज्यादा होगा तो वो जो एम्प्टी है उसको भी वो वही कर देगा। जैसे कि अगर 4 आप कह रहे हो टेम्परेचर हॉट है या फिर माइल्ड है, तो जिसका ज्यादा काउंट है, माइल्ड का अगर ज्यादा काउंट है, तो वो जो एम्प्टी प्लेस है 1 हमारे पास वेकेंट है यहाँ पे प्लेस टेम्परेचर में, तो वो 1 पे क्या फिल करेगा, माइल्ड। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। सो comma in place equal to, we have to replace it, correct? Then we will print the latest data set after filling missing values, okay, with modes. मोड मेथड से हमने अभी यहाँ पे फिल किया है। सो विल प्रिंट df underscore csv. okay, let's see this match where, okay, so here we were having okay, this was extra. True is not defined, in place equal to true. Okay, t should be in capital. All right. Okay, so now you can see here जो हमारे पास वैल्यू थी टेम्परेचर में, अभी देखो यहाँ पे सारा का सारा उसने फिल कर दिया। ओके, और काउंट उसने माइल्ड ही डाला, क्यों? क्योंकि माइल्ड का ही काउंट सबसे ज्यादा था। मोड मेथड क्या करता है, जो काउंट सबसे ज्यादा है वो उसको रिप्लेस कर देगा उसी से। ओके, सो दिस इज वन सिंपलेस्ट वे थ्रू विच वी कैन डू इट। लाइकवाइज वी कैन यूज मीन मेथड ऑल्सो। ओके, तो ये भी हमने मोड से देखा। लेट्स सी यूजिंग मीन मेथड। सो df अंडरस्कोर csv, मीन मेथड के लिए हमको नंबर चाहिए, सो आई एम यूजिंग इट नंबर विच इज SNO। ओके, हमारा जो फील्ड है हमने ऐसा ही कुछ वैल्यू दिया हुआ है। वी हैव टू सी द डेटा सेट, आपने क्या नाम दिया है, सो SNO। ओके, लाइकवाइज वी हैव टू एड इट df underscore SNO dot fill NA mean method, we required maths for that। okay, नंबर से ही वो डील करने वाला है। then dot mean comma in place will be true। okay, then we have to print it, so I'll copy from here। we have to write here mean method। let's run this। so now you can see here, पहले यहाँ पर इनिशियली एक वैल्यू मिसिंग थी SNO की। सो नाउ अभी उसने ये वाली वैल्यू मिसिंग थी 12 नंबर। सो उसने अभी यहाँ पे यहाँ पे NA लिखा हुआ है ना, ये नंबर SNO कॉलम में मीन मेथड अप्लाई करके उसने ये नंबर डाल दिया। ओके, सो लाइकवाइज वी कैन फिल इट यूजिंग मीन मेथड और मोड मेथड। मोस्टली हम मोड मेथड से ही काम करते हैं। मीन मेथड जब आपका डेटा नंबर होगा तो आप मीन मेथड यूज करेंगे। okay, so this is how we can identify the missing value and we can solve it using mean and mode methods। now after that, the next part is about the outliners। yes, outliners, let's see for the outliners also। outliers, first we'll see how to plot it using matplot। pyplot as
we'll create the object plt, then we'll import cbon. ये दोनों लाइब्रेरी से आप ग्राफ वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं. We are plotting using box plot. Okay, box plot will write data equal to df underscore csv. Then we'll plot our field जो हमने कॉलम दिया है नंबर ऑफ पीपल. ओके, जैसा आपने वहाँ पे लिखा है कॉलम वैसे ही आप लिखिए. एंड देन विल राइट plt show. It is little bit slow. I was wondering why it is not working. See, तो अब हमारा सारा डेटा 1 to 4 के बीच में लाई कर रहा है. एक वैल्यू है जो 100 हमने दी हुई है यहाँ पे. दैट इज अवर फॉर श्योर आउटलाइनर. यस, बाकी सारा 1 से 4 के बीच में ही लाई करता था. तो अभी हमारा आउटलाइनर है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया यूजिंग मैटप्लॉट एंड cbon लाइब्रेरीज. ओके, बॉक्स प्लॉट हमने किया है ये. अब इसके बाद इसको आप डिलीट कैसे करेंगे? ओके, सो फॉर डिलीटिंग द outliner, सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे IQR दैट इज इंटरक्वार्टाइल रेंज कहते हैं. ये सबसे बेस्ट मेथड है, इजीएस्ट मेथड. विल फॉलो दैट ओनली. IQR which means interquartile range method. Okay, using this method we will create two quarters. q1 equal to df underscore csv number of people. Okay, अब इसको हम क्वांटाइल में डिवाइड करेंगे. 0.25. ओके, 0.25, 0.75 ऐसे हमने दो क्वार्टाइल बना दिया है. इस मेथड से हम डायरेक्टली हमारा जो डेटा सेट है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं. एंड देन जो बीच में हमारा डेटा लाई करेगा उससे हम कैलकुलेशन करके हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि हाँ हमारा आंसर और जो एक्चुअल डेटा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है. 0.75. okay, then we have to write IQR equal to, this is our main method, which is Q3 minus of Q1. Okay, then we have to set lower bound. I have tried this. I will copy directly from there. See what here we have done here. हमने हमारा जो स्टडी है डेटा है उसको हमने दो क्वांटाइल में डिवाइड किया है, एक 0.25 एंड देन 0.75. ओके, एंड हमारा जो रेंज होगा वो इन्हीं के बीच में हमारा एक्चुअल डेटा लाई करना चाहिए. उसके लिए फिर हमने लोअर बाउंड अप्लाई किया है जिसका ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा. Q1 माइनस ऑफ 3 इंटू IQR एंड अपर बाउंड विल बी Q3 प्लस 3 इंटू IQR. ओके, एंड देन वी हैव टू चेक कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है. ओके, तो एक्सट्रीम आउटलाइनर्स वही होंगे जो ये रेंज में नहीं है. ओके, अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हैं एक्सट्रीम आउटलाइनर्स को, यू कैन सी द डेटा देन. सी
this was the data which is not belong to our study, correct? तो ऐसे आप आउटलाइनर्स को रिमूव कर सकते हैं. देन आपको अगर क्लीन डेटा चाहिए, सो वी हैव टू राइट df cleaned equal to df underscore csv, df underscore csv number of people should be greater than equal to lower bound and df underscore csv number of people should be greater than equal to अपर बाउंड. तो ये भी आपने रेंज क्रिएट कर दिया है. तो अब ये जो डेटा क्लीन होगा ना, ये हमारा एक्चुअल डेटा होगा जो हमको चाहिए था आउटलाइनर रिमूव करने के बाद. सो सी द ब्रैकेट्स, वी हैव टू चेक इट प्रॉपर्ली. So now we can run and we can see the clean data has been derived. ओके जो 100 वाला जो वैल्यू थी आउटलाइनर वो उसने डिलीट कर दी है. ओके सो ये बेसिकली क्या किया हमने, हमारा जो नंबर ऑफ पीपल जो एट्रीब्यूट है उसमें हमने लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड सेट कर दिया. मींस लोअर बाउंड क्या होगा 1 होगा, अपर बाउंड क्या होगा 4 होगा. तो उसके बीच में ही डेटा लाई करना चाहिए. अगर उसके बियॉन्ड रहेगा तो फिर वो उसको डिलीट कर दे रहा है, उसको ले ही नहीं रहा है अपनी स्टडी में. ओके एंड ऐसे हमने नया डेटा फ्रेम क्रिएट किया विच वी हैव प्रिंटेड हियर. ओके तो अगर इसे ही अगर आप वापस प्रिंट करना चाहते हैं, ओके cbon, लेट्स डू दैट ऑल्सो. बॉक्स प्लॉट के थ्रू हम देखते हैं कि हमारा डेटा क्लीन हो गया है या नहीं हो गया है. क्लीन्ड नंबर ऑफ पीपल sorry. Okay so now you can see we have derived this, okay, which is our correct answer. Okay so means हमारा data set now clean हो गया है. Now we'll see the D part which is manipulation. Okay we have to filter, sort and group. Let's do that. Suppose I'm applying filter FDF. I'm creating a new filter on our CSV data. DF CSV will say number of people should be greater than 2. तो अब जितने भी greater than 2 होंगे डेटा सेट में वो अभी प्रिंट होना चाहिए. प्रिंट एंड देन विल प्रिंट f अंडरस्कोर df. नाउ यू कैन सी 2 से जो भी ग्रेटर होगा ये इससे ही सिंपल आप फिल्टर कहते हैं. ओके कोई भी एक कॉलम में आपने कह दिया कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर होएगी तो फिर हम प्रिंट कर रहे हैं. ऐसे आप फिल्टर अप्लाई करते हैं. ओके एंड सपोज आपको सॉर्टिंग करनी है. सो सॉर्टिंग के लिए I'll write sorting df using descending order. Okay मैं ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने df csv dot we have to write sort underscore values by number of people. यहाँ पर आपको सिंपली स्पेसिफाई करना है कि आप कौन सा ऑर्डर दे रहे हैं. ओके तो अब यहाँ पे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है इसलिए हमने इसको असेंडिंग को फॉल्स रखा है. देन विल प्रिंट हमारा ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है ये. नाउ लेट्स रन.
सो ये इसने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दिया है. ओके, एंड दैट इज नंबर ऑफ पीपल. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉर्ट. अगर आपको असेंडिंग में चाहिए होगा तो आप यहाँ पे ट्रू सेट कर देंगे. और ये नंबर ऑफ पीपल के लिए लिया है मैंने. आप कोई और भी वहां पर एट्रीब्यूट डाल के, कॉलम नेम डाल करके आप ऐसे सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, नाउ फॉर ग्रुपिंग. df मैंने लिखा, df अंडरस्कोर csv dot group by. I'll write now outlook dot size. This is the method. और यहाँ पर सिंपली आप प्रिंट करेंगे g_df को. ये ग्रुप करेगा. आउटलुक में हमारे पास क्या क्या है? सनी है, ओवरकास्ट है, रेनी है. ओके, लेट्स सी. देखो, आउट ग्रुप भी कर रहा है और प्लस वो साइज बता रहा है. आउटलुक कितना है हमारे पास? देयर आर बेसिकली 3 कैटेगरीज, दैट इज ओवरकास्ट, रेनी एंड सनी. तो वो ओवरकास्ट कितने कॉलम्स हैं, कितनी वैल्यूज हैं, रेनी कितना है, सनी कितना है, वो उसने सिंपली काउंट कर लिया है. ओके, सो ऐसे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं. ओके, सो अभी हमने प्रैक्टिकल नंबर 2 परफॉर्म किया है, TYCS डेटा साइंस. ओके, वी हैव क्रिएटेड अ CSV फाइल, JSON फाइल. वी हैव परफॉर्म डेटा फ्रेम बेसिक ऑपरेशंस. मिसिंग वैल्यू कैसे डील करना है, आइडेंटिफाई करना है, रो वाइज, कॉलम वाइज, काउंट करना. देन मिसिंग वैल्यू को डील करने के लिए वी हैव सीन मोड एंड मीन मेथड्स. सबसे इजी मोड मेथड होता है. देन आउटलाइनर्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, आउटलाइनर्स को आप कैसे डिलीट करेंगे, एंड वापस डेटा प्रिंट करना, डेटा क्लीन करना. यस, देन मैनिपुलेट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग. द डी जो डी सब क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज परफॉर्म. अब यहाँ पे मैंने सैम्पल डेटा सेट कुछ भी लिया था. आप जब आप प्रैक्टिस करें सो आप कुछ अच्छा डेटा सेट लेके ही ट्राई करें, सो दैट जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा. बिकॉज यूनिवर्सिटी क्वेश्चन कैसे भी कोई भी डेटा सेट, न्यू अवेलेबल डेटा सेट वो लोग यूज करते हैं. ओके, बट कंसेप्ट विल बी सेम लाइक वी हैव डन हियर. ओके, नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर. थैंक यू so much everyone for watching. Do like the video. Thanks for watching.